Yesterday, Supreme Court gave first ever euthanasia permission. Mercy killing. Euthanasia. We already have talked about euthanasia in many of my classes. Apart from this, the international conference that we conducted, Thanatopolitics, the death studies, there also I clearly told that euthanasia will be accepted in India soon. So, pehle I'll give you a reference and then we'll go to our topic. So, there is a writer, Pinky Virani, and she wrote yes, she wrote a famous work. A writer, Pinky Virani, just giving you a reference. She wrote a famous work, crime fiction, Arunad's Story. You remember American writer Truman Capote? I wrote a book, In Cold Blood, that was a fiction based on real crime. This work by Pinky Virani, Arunad's Story, is called a counter reply to Truman Capote's In Cold Blood. मतलब ये इन्होंने इतना अच्छा लिखा है कि कहते हैं कि ये इंडियन रिप्लाई है उनको कि देखो हम भी लिख सकते हैं. In Cold Blood. In Cold Blood, Truman Capote. So we took this reference because we're talking about the realistic crime fictions. Crime is real, description of crime is fictionalized. Real murder story जैसे आरुषि है, आरुषि तलवार हत्याकांड, आज तक नहीं पता किसने किया है, लेकिन मूवीज बन गई ना, और मूवीज ने भी आपको एक ओपन एंडिंग दे दी. तो ऐसे ही इन्होंने स्टोरी लिखी थी इन कोल्ड ब्लड. He wrote a story in Cold Blood which was based on a murder. There were two Americans, they were the ruffians, they were like goons. They were in the prison. When they got released, they decided to do one last crime. So दोनों criminals थे, और जब वो जेल से छूटे तो उन्होंने कहा एक फाइनल हाथ मारते हैं. हर चोर के माइंड में एक चीज होती है, एक बड़ा हाथ लग जाए और ये ना करना पड़े. यू नो, एक बड़ा बैंक लूट लो 100 करोड़ का, फिर रोज रोज थोड़ी चोरी करनी है. So these two criminals who were already fed up with their life and regular punishments, after getting released from prison, decided to do one last crime on a big scale so that they get finally settled and they can leave this criminal world. So they simply entered in the house of a landlord. Now America is a big patch of area, big land. So farmers mostly live in the houses which are isolated. उनके neighborhood में मकान नहीं होते. एक घर यहाँ है तो दूसरा घर 1 किलोमीटर पे होता है. So they just entered, ठीक है, किसी के फार्म हाउस में, एंड दे टुक एवरीवन एज हॉस्टेज, सबको चेयर पे बांध दिया, एंड दे सर्च एंटायर हाउस लुकिंग फॉर मनी. अनफॉर्चुनेटली दे जस्ट फाउंड $55 इन कैश. पूरे घर को बांधने के बाद $55 कैश. नाउ जस्ट टू गेट rid of that thing and to leave no proof, they killed everyone. उन्होंने सबको मार दिया क्योंकि यार पैसा तो मिला नहीं, पर ये देख लेंगे, सबने देखा है, they'll identify us. So they just killed everyone, and that became one of the high scale murder case. Truman Capote, Harper Lee, the writer of To Kill a Mockingbird, they both investigated. Truman Capote personally used contacts of Harper Lee to get into police department, see the real crime scene, and then wrote this book. These two guys got arrested and got punished. They were given death punishment. तो ये अमेरिकन हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट मैसेकर माना जाता है. एक ही परिवार के 7-8 लोग इंक्लूडिंग द किड्स, दे वर किल्ड. अब इसका रिप्लाई मानते हैं इसको. सो रिप्लाई मीन्स showing the writing talent that we can also write realistic crime fiction. This is based on Aruna Schonborg, a real life character. A real life character. Aruna Schonborg was a nurse serving in some hospital. ये किसकी कहानी है? अरुणा की. अरुणा Schonborg. A real life nurse serving in a hospital was sexually assaulted by a man who tried to molest her. When she resisted, protested, to control her, he used a metal chain, and strangulated her. He tried to kill her. तो उसने देखा कि नाम बता देगी मेरा, तो उसने चेन लपेटी and he tried to strangulate her. That blocked oxygen to her brain and left her completely paralyzed. वो लड़की मरी नहीं, पर वो नेक के नीचे पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया, कंप्लीटली पैरालाइज, नॉट इवन द आईलिड्स, नथिंग. नाउ अप्रॉक्स 45 years she was in bed
her friends, family members, relatives, everybody stopped coming to her. 2-3 years में सब छोड़ के चले गए कि जो होगा. 45 years वेजिटेटिव स्टेट मीन्स नेल्स ग्रो कर रहे हैं, बाल ग्रो कर रहे हैं, बॉडी में सारे हार्मोन्स हैं, बॉडी ब्लड फ्लो कर रहा है, सब चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ बॉडी हिल नहीं रही है, आंख भी नहीं हिल रही है. एंड नॉट 1 year. देयर इज अ मूवी बाय ऋतिक रोशन, गुजारिश, one of the class movie you must watch if you have not. Gujarish, a movie, is loosely based on Aruna Shanbhag case. This man Gujarish, this guy Hrithik Roshan is playing the role of a man who is paralyzed. कोर्ट में जाके बोलता है I want death. He says I don't want to commit suicide. I don't want to leave my legacy that I just surrendered in front of life and committed suicide. Allow me to die. And the lawyer says no, it is not possible. We cannot say. So he simply plays a trick with lawyer. वो लॉयर को एक डब्बे में बंद करवा देता है किसी तरीके से 1 मिनट के लिए, और लॉयर ऐसे बंद हो जाता है. एंड देन ही सेज दैट यू हैव जस्ट लिव्ड 1 minute ऑफ माई लाइफ, just 1 minute of my life. So Hrithik is not given the punishment because euthanasia, the mercy killing, is not allowed in India. Hinduja Hospital pleaded for Aruna Shanbhag. The matter was taken to Supreme Court. Hinduja Hospital said it's been 16 years. We don't believe that she's going to be fine. So let her die. She's suffering. So they approached Supreme Court. Supreme Court denied. Supreme Court simply said that we Indians believe in miracles. हम चमत्कार में विश्वास रखते हैं, तो हम इसको कुछ नहीं कह सकते. अरुणा शानबॉग बहुत बड़ा केस बना. फेमस एग्जाम्पल मुन्ना भाई MBBS, आनंद चटर्जी, द बेड, रिमेंबर द सीन? उसमें डॉक्टर की लाइन बोलता है कि इंडिया में इतने मरीजों के लिए बेड चाहिए, क्या हम इस आदमी का बेड किसी और को नहीं दे सकते क्योंकि इसकी कोई चांसेस नहीं है. दैट वॉज एक्चुअली द सेम पिटिशन अपील, सेम लॉजिक गिवन टू द कोर्ट बाय हिंदुजा हॉस्पिटल. दे सेड कि भाई नहीं कुछ हो रहा है, 16 साल हो गए, ठीक है, और चूंकि हिंदुजा का नाम फैल गया था, सो दे हैड टू टेक केयर ऑफ, सो दे अपील्ड. एंड पर्सनली आई वुड हैव गिवन मर्सी किलिंग, मैं तो दे देता क्योंकि वो ऑलरेडी हेल्थ देख रही है. शी डाइड हर नेचुरल डेथ. नाउ yesterday another family approached, their son was totally paralyzed last 13-14 years, brain dead, पूरा कॉमा में है वो, and finally the death mercy killing has been granted. So it is the first ever case of euthanasia where the Supreme Court has allowed. Now in the final verdict where Supreme Court allowed, Supreme Court took the reference of to be or not to be. हैमलेट का रेफरेंस लिया है. जो जज है उन्होंने टू बी और नॉट टू बी का रेफरेंस लिया है. सो इन हिज फाइनल verdict, he quoted line from Hamlet, to be or not to be, and he talked about the life which is painful, which may be painful in next life. We studied Hamlet yesterday. The same day Supreme Court was reading this line. He talked about life, to be or not to be, suicide, things. Apart from this, there was a teacher in Madhya Pradesh, 70-year-old man. He applied for euthanasia. He simply approached President of India. And in his petition, it was written that I'm a retired man. I'm 70 plus. I have no debts. I have fulfilled all my responsibilities. My son, my daughter, they are all married, living in a happy family. My wife is no more. And I personally feel I'm not relevant in this life anymore. Every day for me is a burden. And I want to die, I want to have mercy killing, because if I commit suicide or if I just kill myself randomly, my kids will always be questioned. बोलेंगे बाप को ध्यान नहीं दिया, बाप ने सुसाइड कर लिया, तो क्यों ना मुझे अलाउ किया जाए. And he was a teacher. That was also denied. The conference we did, that was on thanatopolitics. हमारी कॉन्फ्रेंस किस पे थी? ये लेटेस्ट स्टडीज हैं. मेरे अपने लेक्चर में जो मैंने प्रोफेसर सौगता भादुरी फ्रॉम JNU एंड सम फॉरेन प्रोफेसर्स, स्टीवन सॉगनर, उनके सामने जो मैंने स्पीच दिया था, वहां पे मैंने एक लाइन बोली थी दैट यूथेनेशिया विल बी कॉमन इन इंडिया सून, एंड आई टुक द रेफरेंस ऑफ स्विट्जरलैंड सुसाइड पॉड्स. Switzerland is the first country that has developed suicide pods. Euthanasia is already valid in many countries, including certain states of America.
अमेरिका के भी टेक्सास पेंसिल्वेनिया में यूथेनेशिया अलाउड है। तुम्हें मरने का मन है, तुम्हें लगता है मरना चाहिए, जाओ डॉक्टर को बताओ, लीगल फॉर्मेलिटीज करो, दे विल गिव यू सम इंजेक्शन, यू विल बी अनकॉन्शियस एंड वंस यू आर अनकॉन्शियस दे विल गिव यू अनदर इंजेक्शन, यू विल डाई द मोस्ट पीसफुल डेथ। नाउ व्हाई इट इज बीइंग एक्सेप्टेड? कल सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो लॉजिकली एक अच्छे तरीके से मरना चाहेंगे। Few days back, 60-year-old lady in my society, third, fourth building, I told you ना, she jumped and committed suicide, सर फट गया उनका सब कुछ। क्यों किया होगा? भाई sometimes there are, you know, life is something what? It is like a chewing gum. You're in chewing it, initially it has taste, you feel good, but then it becomes a burden. Some, you know, there are people, you don't know the reality. In big societies, parents are living alone because the kids are settled abroad. माँ बाप बड़े से घर में अकेले रहते हैं क्योंकि बच्चे सब विदेशों में। अब अगर वो माँ बाप के में से कोई एक नहीं है तो दूसरा अकेला पड़ जाता है, और आइसोलेशन, लोनलीनेस, डिप्रेशन जिस लेवल पे आपको मार दे। मेरे पड़ोस में एक अंकल हैं, हमको देखते हैं कि वो बालकनी में आते हैं, पौधे वौधे को देखते हैं, फिर चले जाते हैं। हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, ही डजंट टॉक टू एनीवन, बट हमें पता है वो पूरे घर में अकेले ही रहते हैं। तो फिर क्या लॉजिक है? और एक एज में आपको इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट से मतलब नहीं है, दैट विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस। एक एज में यू डोंट केयर कि राहुल गांधी पीएम है कि मोदी पीएम है। 70+, 80+ की एज में देयर आर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, एंड वेयर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड, दिस इज गोइंग टू हैपन। थैलेटोपॉलिटिक्स, डेथ, बेनिफिट फ्रॉम डेथ। we have already been injected corona vaccine. That can be a plan. अगर हम चिकन खाना बंद करवा दें लोगों का, तो इतनी ज्यादा मुर्गियां हो जाएंगी ना कि सड़कों पे घूम रही होंगी। 7 दिन में पूरा वर्ल्ड मुर्गियों से भरा हुआ होगा, सड़क पे गाड़ी सब पे चढ़ती हो जाएगी। तो एडजस्टमेंट के लिए खा रहे हैं, वो भी जरूरत है। तो अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है तो अमेरिका वाले मारे जाएंगे क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो क्यों ना एक थैलेटोपॉलिटिक्स में डेथ को एज अ टूल यूज किया जाए फॉर बेटरमेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल, महर्षि दाधीची, when the war in the heavens took place, the angels, the good angels, the bad angels, in Hindu reference, Hinduism, Devasur Sangram, Dev or Asur, Dev is God, Asur Rakshas, Devasur Sangram. To defeat the Asur, all the gods, angels, they needed a weapon, special weapon, and to have that special weapon, they approached a rishi, a saint, and how did they get the weapon from that rishi? They said, sir, we want strongest ever weapon, that is Vajra, and that can only be made with your bones. He donated his body for a greater good, that is the death as a tool. किसी के मरने से किसी का फायदा होता है। फिल्मों में देखा होगा आपने कि बाप बेटे कहीं फंस गए तो बाप खुद का बलिदान कर रहा है कि बेटा बच जाए ताकि ये हो जाए। तो डेथ हैज अ टूल, डेथ दैट हेल्प्स यू टू सर्वाइव। तो अगर गरीब लोग मारे जाएं 10 करोड़ 20 करोड़ तो बाकी सर्वाइव करेंगे। एंड वन डे वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स। व्हाट इफ यू ऑल गेट अ चांस टू किल क्रिमिनल्स? वाइप आउट, खत्म करो, सब बंदूक निकालो, जिसको जो कहां जहां क्रिमिनल मिलता है, कंफर्म है कि ये मॉलेस्टर है, मारो गोली, इफ टीजर है गोली मारो, तुम्हें दिख रहा है बैंक फ्रॉड कर रहा है गोली मारो, खत्म करो। पॉपुलेशन भी खत्म और क्राइम भी खत्म। ये कॉमन हो जाएगा क्योंकि किसी की मौत किसी को बचाएगी, तो फिर वो चूज करेंगे कि किसकी मौत किसको बचाएगी। ओल्ड पीपल, ये आज की अभी नहीं होगा, ये होगा 15-20 साल के बाद होगा, मार्क माई वर्ड्स, होगा जरूर। ओल्ड पीपल विल बी टोल्ड ईदर हैव यूथनेशिया। भाई अब why we are scared of death? Why you all are scared of death? We are not scared of death. We are scared of painful death. किसी को जल के नहीं मरना है, किसी को गाड़ी के नीचे आके नहीं मरना है, पर कोई बोले कि गुदगुदी होगी, हंसी मजाक सा होगा और आंख बंद हो जाएगी। नहीं, दवाई भी अगर आपको अंदर से बर्न कर देगी तो पेनफुल हो जाएगा, बट कोई आपको बोले कि नहीं जस्ट स्लीप, प्ले योर सॉन्ग, जस्ट स्लीप, किसको डेथ नहीं चाहिए होगी बताओ? डेथ इज एन एस्केप। असली वर्ड तो जिंदगी लगाती है। जिंदा रहोगे तो एग्जाम देते रहोगे,
फिर सैलरी के लिए सोओगे, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही सर, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, और मर गए तो 100 तरीके की प्रॉब्लम्स. They will make it so easy, so enjoyable that people will start approaching for euthanasia. और देख लो कहां से होता है, वहीं से कर दो चाहे, या बुला लो किसी को अगर फैन बंद करना है तो. स्विट्जरलैंड ने सुसाइड पॉड्स क्यों बनाए? एक इंजेक्शन से काम हो सकता है, 2 इंजेक्शन से काम हो सकता है. व्हाई सुसाइड पॉड्स? And there is already a couple that has opted for suicide pod to die together. The first couple. They both are in 90s. 90 साल की उम्र में है. स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं तो दुनिया तो देखी ली, अब क्या करना वो. The most beautiful world they have already seen. So what it becomes extremely enjoyable, and they're making it. धीरे धीरे आपको मोटिवेट किया जाएगा. Government will bring policies that if the old people accept euthanasia, their son will be getting government job. ऐसे ऑफर आएंगे, मरने के फायदे मिलेंगे आपको. LIC मरने के फायदे नहीं बताता. हाँ? In death of salesman, why Willy Loman commits suicide by crashing his own car? Because he has insurance money. He knows if I die, my sons will have that. My sons will have money. They can live their American dream. So any person who loves his family, whose siblings, would definitely go for the euthanasia. So the coming 15-20 years में it's going to happen. Yesterday's case, that was my reference. Hamlet बताना था आपको जरूरी था. Any points, any suggestions? कुछ बोलना है before we switch to our topic? हाँ, उन्होंने बोला कि सप्लाई बंद कर दो, खाना पीना बंद कर दो. वो उसमें फिर एक चीज है ना, उसमें ये है कि कौन अपने ऊपर शाप ले. देखो पनिशमेंट कौन ले. जैसे आप बोलोगे कि डॉक्टर को कि तुम दो, अब मुझे बोलो कि सर आपने एक सुई लगा दो, मर जाएगा, मैं कहूँ नहीं मैं नहीं करूंगा, तो कौन करेगा? अरे यार, यू नॉट गेटिंग इट. मर्डर चार्ज लग जाएगा अगर फैमिली खुद मार दे तो. और एक माँ बाप अपने बच्चे का गला घोट के कैसे जिएंगे जिंदगी भर? और वैसे इन रियलिटी a lot of deaths take place like this, especially in the cases of disability, paralysis. Sometimes घर में कोई चुपचाप मुंह पे तकिया रख के बात खत्म करवा देता है. So I personally feel कि अगर ये कोर्ट के थ्रू हो रहा है तो easy है, better है. Nobody has to go through a guilt. तो मुझे तो वही लगता है. मेरा फ्रेंड का जो डॉग है वो बहुत पेन में था, तो डॉक्टर ने हमें बोला कि इसको जाने दो. एंड माई फ्रेंड वॉज नॉट विलिंग. वो कह रहा था मैं हाँ ही नहीं कर सकता. आई वॉज क्राइंग 5-6 months बैक. मैं उसको उसके डॉग को दोनों को देख रहा था. जिसको मैंने बेसेनियो बताया था ना, बेसेनियो जिसको मैंने डॉग दिलाया था, वो वही डॉग था वो. तो फिर मैंने कहा मैं भी डिसीजन नहीं लूंगा, मैं भी यस नहीं बोलूंगा, नो आई कैन नॉट. बट डॉक्टर्स सेड कि देखो जिसको जितना करना कर लो, ही इज हैविंग सीवियर पेन इनसाइड, जाने दो. तो वो भी डिसीजन नहीं ले पाया. मैंने भी मना किया, मैं नहीं, आई विल नॉट टेक एनी डिसीजन लाइक दैट. मैं नहीं, मेरे मुंह से हाँ नहीं निकला. एंड देन थैंक गॉड वो बेचारा शाम को ही नेचुरली, या मे बी किसी डॉक्टर ने चुपचाप उसको कर दिया हो, बट द डॉक्टर गेव अस न्यूज़ कि ही डाइड विद हार्ट अटैक. सो काइंड ऑफ समथिंग, काइंड ऑफ कंसोलेशन फॉर अस कि चलो नेचुरल डेथ है. हाँ, बट इट वॉज अ मर्सी. इट वॉज अ मर्सी. क्या रोल प्ले करेंगे? इक्वली. अगर चिल्ड्रन अलाउ कर देंगे पेरेंट्स के लिए तो क्या रोल प्ले कर रहे हैं? अच्छा, आप बहुत डिटेल में जा रहे हो कि हु अप्रोच कोर्ट, तो गिल्ट तो लगेगा. देखो यार, हर आदमी को ना अपने गिल्ट से छुटकारा चाहने के लिए रीजन चाहिए होता है. ठीक है? आप यू किल अ बटरफ्लाई, यू विल फील गिल्टी. यू किल अ कॉकरोच, यू विल फील हैप्पी. दे बोथ हैव लाइव्स, राइट? सो गिल्ट का तो क्या है, जैसे गंगा नदी है, बड़े से बड़ा काम क्राइम करो, हरिद्वार जाओ, नहा लो, खुद को समझा लो आई एम क्लीन. तो पेरेंट्स जो गए हैं कोर्ट, उनको ये है कि चलो हमने सरकार से पूछा है, ठीक है, चलो नाउ वी आर डन विद दिस टॉपिक. दीक्षा मैम से इस पे लेक्चर ले लेना, स्पेशली थैनेटोपॉलिटिक्स पे.